So in this video we are learning AGM again. कुछ ओवरव्यू किया था हमने लास्ट क्लास में लाइव में. So let's see AGM, annual general meeting. I've told you AGM is a meeting which has been held every year once. Applicable to which companies, guys? Applicable to all companies except OPC. You don't have to do an AGM for an OPC company. That's quite natural. Thus, it is mandatory for all companies except OPC to hold AGMs in accordance with the provisions of this section 96. ठीक है. Now further it says that whenever you keep an AGM, you have to comply with the note requirements of section 101. We have done this 101, that is 21 days notice ka length, and every concept linked to that has to be complied with. The notice shall comply that the specify the same that a meeting so held is an AGM. It means that 101 का compliance करना जरूरी है for giving notice of AGM, and the notice shall state that it is an AGM of the company so that everyone can be clearly understanding the effect. It's a once in a year meeting. What is the last date of holding the AGM? It says that first AGM shall be held within 9 months from the end of the first financial year. We have learned this very well. आपको अभी के लिए यही याद रखना है. Within 9 months from the end of first financial year. मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st ऑफ मार्च. 31st मार्च के एंड के बाद 9 मंथ 31 दिसंबर के पहले ये मीटिंग हो जानी चाहिए. इफ द मीटिंग इज सो हेल्ड, देयर इज नो नीड टू होल्ड द मीटिंग इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन. दिस इज समथिंग व्हिच यू विल अंडरस्टैंड इट व्हेन यू रेफर टू एग्जिस्टिंग रेगुलर मीटिंग्स. 2020 में आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, आपका ईयर आया 2021 मार्च एज योर लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड मार्च. वहां से आपने 31 दिसंबर 21 में मीटिंग रखी 9 मंथ्स के अंदर. तो 2020 में आपने मीटिंग रखी या नहीं रखी? नहीं रखी. तो इफ यू आर कीपिंग इट इन द ईयर ऑफ, इफ यू आर होल्डिंग द मीटिंग विद इन 9 मंथ्स ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, then you don't need to hold the meeting in the year of incorporation. But naturally फर्स्ट ईयर में ऐसा होगा. आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मार्च के बाद 9 मंथ्स के अंदर आपकी मीटिंग हो जानी चाहिए. Because every year close of the financial year is from what? 31st of March से. Can you request ROC to request for extension for 9 months or more? No extension can be granted beyond 9 months. Impossible. इसके बाद ये कहता है what about subsequent AGMs? मतलब after first AGM जितनी भी AGMs होगी उसे हम क्या कहेंगे? Subsequent AGMs कहेंगे. उसके लिए बोलता है, आपको मैंने कहा था विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, द गैप बिटवीन द टू मीटिंग्स शुड नॉट बी मोर देन 15 months एंड इट हैज टू बी हेल्ड इन एवरी कैलेंडर ईयर वंस. तो हर साल एक बार 15 months का मैक्सिमम गैप बिटवीन टू एंड विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर. ये 3 क्राइटेरियाज बोले गए हैं. मैं रिपीट करता हूं, एवरी सब्सिक्वेंट मीटिंग 6 months ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, लास्ट एजीएम जो हुई और ये एजीएम जो होने वाली है, दोनों के बीच में मैक्सिमम गैप शुड नॉट बी मोर देन 15 months, एंड द थर्ड वन एवरी कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग होनी चाहिए. द 3 टाइम लिमिट्स गिवन आर cumulative in nature. Non-compliance with any of them will constitute an offense. Therefore, the last date for holding AGM shall be the earliest of 3 limits. Shall be earliest of 3 limits. Finally, we are clear that first AGM should be done within 9 months. Next AGM should be done with 3 criteria. That is 6 months from the end of financial year. Gap between the last AGM done and this maximum date gap is 15 months. And the third one says that every calendar year one. That is December 31 is my calendar year end. These are cumulative limits. मतलब तीनों को comply करना पड़ेगा. So that the last date should be what? Earliest of the 3 limits given. तीनों का सबसे earliest date आएगा, वो आपका due date है. इसके अंदर डेट क्या आता है? एग्जाम्पल दूं तो इसके अंदर डेट आता है 30 सितंबर. इसके अंदर डेट क्या आता है थर्ड में? 31 दिसंबर. लास्ट डेट ऑफ कैलेंडर ईयर. ये 6 months फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मार्च के बाद 6 महीना. इसका डेट क्या आएगा?
लास्ट ईयर में समझो मीटिंग का डेट था, लास्ट ईयर में मीटिंग का डेट था 1 मई। अब 1 मई से 15 मंथ गिनो, तो दिसंबर तक कितने दिन आएंगे? दिसंबर तक आपको आएंगे 6 महीना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी 8 मंथ्स। मई से दिसंबर इज 8 मंथ्स। उसके बाद अगले महीने के कितने महीने? 7 महीने, मतलब 31 जुलाई। 31 में लास्ट टाइम हुई थी, तो मैक्सिमम गैप ऑफ 15 मंथ एंड ऑन विच डेट? 31 जुलाई। तो व्हाट इज द लास्ट डेट एज पर पॉइंट नंबर 3? 31 जुलाई। तो कैन आई से दैट 31 जुलाई, 30 September and 31 December, which is the earliest of all? 31 July. What will be my last date? 31 July should be my last date. आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ में आना चाहिए आपको ये। क्या हम एक्सटेंशन डिमांड कर सकते हैं? यस। हाउ मेनी, मैक्सिमम हाउ मेनी मंथ्स? नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। मतलब फर्स्ट एजीएम में एक्सटेंशन नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी 9 मंथ्स दिया है। सब्सिक्वेंट एजीएम में आपको एक्सटेंशन पॉसिबल है कितना? मैक्सिमम कितने महीने, कितने दिन का? मैक्सिमम 90 डेज, दैट इज 3 मंथ्स का। उसका देखिए कहता है व्हाट शुड द टाइम एंड प्लेस? टाइम शैल बी बिजनेस आवर्स, दैट इज 9 to 6 PM। डे, एजीएम कभी भी हो सकती है, लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए? इट शुड नॉट बी अ नेशनल हॉलीडे। एजीएम कहाँ होगी? एट रजिस्टर्ड ऑफिस, या फिर उसी सिटी टाउन विलेज जहां पे अगर वो ऑफिस छोटी पड़ रही है, तो आप उसी सिटी टाउन में बड़ा हॉल लेके आप फिनिश कर सकते हो। लेकिन एजीएम ऑफ अनलिस्टेड कंपनी कहाँ हो सकती है? एनी प्लेस इन इंडिया। The consent is given in advance, either in writing or by electronic mode by all the members. इंपॉर्टेंट केस स्टडी बनेगा कि अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो आपकी एजीएम पूरे देश में कहीं भी हो सकती है, अगर आपने अप्रूवल लिया है बाकी सभी मेंबर्स का पहले से। सीजी चाहे तो आपको इसमें से किसी भी पॉइंट के लिए एग्जाम्पशन दे सकती है, जैसे कि कब रखना है, कहाँ रखना है, एग्जाम्पशन मिल सकता है। ये है आपके लिए सेक्शन 96। वापस एक बार, पहले आता है एजीएम मतलब क्या? एवरी ईयर 1 मीटिंग, ठीक है। उसके लिए नोटिस देनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 101, और आपको बताना पड़ेगा कि जो नोटिस है उसमें लिखा होना चाहिए कि मीटिंग जो है वो एजीएम है। नंबर 2, लास्ट डेट फॉर होल्डिंग एजीएम। तो फर्स्ट एजीएम एंड सब्सिक्वेंट एजीएम्स। फर्स्ट एजीएम के 9 मंथ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और नो एक्सटेंशन फॉर दैट। एंड नेक्स्ट एजीएम दैट इज सब्सिक्वेंट एजीएम्स के लिए लॉ ने क्या बोला? 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, gap between the two not more than 15 months, and the third one calendar year 31 December। तीनों लिमिट कौन सी है? क्यूमुलेटिव है, मतलब अर्लीस्ट ऑफ ऑल। कैन एक्सटेंशन बी अवेलेबल? आंसर इज यस, 3 मंथ्स का। टाइम, प्लेस एंड डे ऑफ द मीटिंग 9 to 6 एनी डे बट नॉट नेशनल हॉलीडे। प्लेस, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी या सिटी और विलेज जहाँ पे ऑफिस है, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के लिए पूरे देश में हो सकती है अगर आपने कंसेंट लिया आपके सभी मेंबर्स का। फिर क्या एनसी सेक्शन 96 था जो मेंबर कंपनी ने मीटिंग बुलवाई, क्या एनसीएलटी एजीएम बुला सकती है? सेक्शन 97 में आंसर इज यस। अगर कंपनी ने एजीएम नहीं रखी 96 के अंदर, तो एनसीएलटी खुद एजीएम बुलवा सकती है। क्या मेंबर्स बुलवा सकते हैं? आंसर इज नो। मेंबर्स कैन अप्लाई टू एनसीएलटी। मेंबर्स अप्लाई करके एनसीएलटी को, एनसीएलटी हमारी कंपनी का एजीएम नहीं हुआ है, तुम कुछ देखो, तो फिर एनसीएलटी डायरेक्ट करेगी to call the AGM of the company। इसके अंदर लॉ ने लिखा है कि अगर इस एजीएम में भले ही एक बंदा अवेलेबल हो, फिर भी वो एजीएम मानी जा सकती है अगर एनसीएलटी बोले तो। सी, आपको ये समझना है, या तो एनसीएलटी खुद अपने दम पे बोलेगी कि तुम्हारा एजीएम हुआ नहीं, हम रखवा देते तुम्हारा एजीएम, या तो किसी मेंबर ने अप्लाई किया कि सर मैं तो कह नहीं सकता एजीएम रखने के लिए, बट आपको लॉ ने पावर दिया है, मैं आपको बोलूंगा आप एजीएम रखवाइए, तो एनसीएलटी भी एजीएम रखवा सकता है। 97 नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट कि एनसीएलटी हैज अ पावर टू कॉल एजीएम। क्या एनसीएलटी एजीएम कॉल करवा सकता है? यस यस यस। एजीएम गाइस, दो एजीएम के बीच में जितनी भी मीटिंग होगी उसे हम क्या कहेंगे? एजीएम्स कहेंगे। इफ फॉर एनी रीजन is impractical to call or hold EGM, the tribunal may order an EGM to be called, held, and conducted in a manner specified. The tribunal may give such directions as it may think fit, including the direction that one member shall form the quorum.
ये हमने ऑलरेडी देखा। लेकिन ट्रिब्यूनल ईजीएम कब रखेगा? ऑन रिक्वेस्ट ऑफ अ मेंबर, डायरेक्टर या अपने दम पे। वेरी सिंपल, 98 इज ऑल्सो वेरी सिंपल। इतना याद रखना कि ईजीएम मेंबर्स के कहने पे एनसीएलटी बुलवा सकता है, अपने कहने पे या डायरेक्टर कहने पे ईजीएम बुलवा सकता है। दैट्स इट। पेनल्टी अगर नहीं रखी, कहने पर भी नहीं रखी कंपनी ने, तो एवरी कंपनी का हर कंपनी और उसका हर एक ऑफिसर शैल बी लायबल टू फाइन ऑफ ₹1 लाख मैक्सिमम, एंड डिफॉल्ट फिर भी हो रहा है तो 5,000 रुपीज पर डे का फाइन लग सकता है। अब इस सेक्शन में आपने 96, 97, 98 एंड 99 देखा, 4 सेक्शन देखे। आप इसको देखो और रिवाइज करो, तब तक मैं आपको सेक्शन 100 बेचता हूँ। इट्स अ बिग सेक्शन, आप देखिए। दिस इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल। ये एक सेक्शन बनेगा अलग से, ठीक है।